इसका रियल मीनिंग क्या होता है, सो किस तरीके से हम देखते हैं, किस तरीके से इसको इमेजिन करना पड़ता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बने रहिए। देखिए, जैसा कि आपको ये प्लेन दिख रहा है, अब आप ये सोचिए कि इसका एरिया वेक्टर किधर हो सकता है, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो सकता है। तो आपको जो इमेजिन करना है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, किसी भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के हमेशा एक परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है, वो उसका हमेशा क्या कहलाएगा, एक एरिया वेक्टर कहलाएगा। ओके, जैसे 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 ये प्लेन आपका शिफ्ट होता चला जाएगा, शिफ्ट होगा, उस तरीके से आपका ये सही नहीं बता पा रहा है, वो भी क्या होता चला जाएगा, शिफ्ट होता चला जाएगा। यानी ये खाली जहाँ जहाँ आपका अपनी आवाज़ पे एरिया खेल वेक्टर रहा है। जैसे जैसे देख रहा है, जैसे ऊपर देख रहा है एरिया वेक्टर, तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा। एरिया अगर ऊपर देख रहा है तो आपका डायरेक्शन ऊपर होगा। अगर चलिए आप में से कई सोच सकते हैं कि सर आप ऊपर ही क्यों बोल रहे हो। ये अच्छा समझाता Hello है। friends, welcome back to Physics and Animation. Today in this video, we will talk about a new term, that is electric flux. To understand electric flux, let's consider a scenario where there is a plane with an area A and a uniform electric field E is acting perpendicular to it. In order to measure the flow of electric field through a specific area, we introduce a concept known as electric flux. Electric flux is calculated by multiplying the electric field intensity by the area from which the electric field is passing. This calculation gives us a value that represents the amount of electric field passing through the given area. With the help of electric flux, we can better understand the extent of the electric field's influence on the fixed area. Currently, we have the plane perpendicular to the electric field. So the maximum possible electric field lines are passing through the area. However, as we start rotating the plane from its initial position by an angle theta, the number of electric field lines passing through the area decreases. If we draw a perpendicular line from tilted plane to its initial position, we get projected area or effective area through which the electric field lines are passing. In other words, as we rotate the plane from 0 degrees to some theta angle, the effective area decreases. Therefore, if area decreases, the electric flux, which represents the quantity of electric field line passing through a fixed area, also decreases. From this observation, we understand that the electric flux also depends on theta. The question arises whether theta will be sin theta or cos theta. And the answer is quite simple. When theta is 0, which means when the plane is perpendicular to the electric field, the maximum area is exposed to the electric field, and therefore maximum electric field passes through the area. Also, we know that for 0 degrees, sin theta is 0, while cos theta is maximum. So we can say that the electric flux phi E is equal to Ea cos theta. However, defining theta with respect to the plane becomes a bit tricky. To simplify the calculation, we define a perpendicular area vector for the plane, whose magnitude is equal to the area of the plane. For a 2D surface, we take the area vector perpendicular to the surface of the plane and along the direction of the electric field, while for the 3D surface, area vector is taken outward normal. Okay, now with the help of the angle between the area vector and the electric field, we can determine at what angle the plane has tilted with respect to the electric field when it is rotated. Furthermore, if we do not rotate the plane, but instead pass the electric field through the plane at a certain angle, we can still calculate the angle theta between the electric field and the area vector. By defining the area vector, it becomes easy to understand the orientation of the surface with respect to the electric field. It provides information about the direction in which the surface is pointing, and this makes the calculations easier. This is why we define an area vector for an area which is actually a scalar quantity. Now, we have an electric field passing through the plane making an angle theta with the area vector. We know that electric field is a vector quantity that can be split into horizontal and vertical components. Here the horizontal component is E cos theta and the vertical component will be E sin theta. In this case, we will only consider a horizontal component E cos theta as it passes perpendicular through the plane. We don't consider E sin theta because it is not passing through the plane. As we have seen before,
the electric flux is equal to EA. And in this case, we have calculated the electric field component passing perpendicular to the plane, that is E cos theta. Thus we get the same equation for electric flux, which is equal to EA cos theta. From this equation, we understand that electric flux is a dot product or scalar product of electric field vector E and the area vector A. So we can simply define electric flux as the number of electric field lines passing through a given area. Electric flux indicates the quantity of electric field lines passing through a given surface and is a scalar quantity. At theta equals 90 degrees, electric flux linking to a surface will become 0, as cos 90 equals to 0, which we can see in the animation that at theta equals 90 degrees, electric field is parallel to the surface and not passing through the surface. If we have any given surface other than basic shapes like rectangular or square, in such cases we will simply consider the delta A small element of area over the surface. For this element, the electric flux del phi E is equal to the dot product of E and del A. Similarly, we can divide the surface into small del A elements and calculate the electric flux for each of them. ठीक है, तो एरिया वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन बताने के लिए कि कैसा ओरिएंटेशन है आपके स्क्वायर प्लेट का। ठीक है, किसी भी स्क्वायर प्लेट का किस तरह का ओरिएंटेशन है वो कौन बताता है आपको? एरिया वेक्टर। अब हम इस पे खूब अच्छे से बात करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को ए से दिखाते हैं। होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए कैप। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए कैप। यहाँ ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेयर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर along the normal direction of, या ऐसा लिख दो, normal to the plane। ए कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, मतलब खाली डायरेक्शन बताने के काम में आता है। डायरेक्शन क्या होता है उसका? नॉर्मल टू द प्लेन। कैसा होता है? नॉर्मल टू द प्लेन। अब मैं नॉर्मल टू द प्लेन की अगर बात कर रहा हूं तो मान लो एक स्क्वायर प्लेट मैंने यहां बना दिया। ये स्क्वायर प्लेट मैंने बना दिया। ये एक्स एक्सिस लिया और ये ले लिया वाई एक्सिस। तो नॉर्मल इसके कौन सा है? इस प्लेन मैं भी तुरंत भगाऊंगा, बिल्कुल बात नहीं, जो डाउट है मुझसे पूछो। तो इसके नॉर्मल क्या होगा? प्लेन नॉर्मल डायरेक्शन इस प्लेन के कौन सा होगा? जेड एक्सिस। अरे एक्स वाई पे 90 डिग्री कौन बनाता है? जेड एक्सिस। तो जेड में दो होते हैं, मतलब के कैप ये होता है जब आउट ऑफ द प्लेन गए, माइनस के कैप जब इनटू द प्लेन जाओगे। तो इनमें से कौन सा लोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2D है सरफेस तुम्हारा तो 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए आप प्लस के कैप भी ले सकते हैं और माइनस के कैप भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर मैंने किसी क्वेश्चन में एक बार प्लस के कैप अज्यूम कर लिया एज एरिया वेक्टर तो उस पूरे क्वेश्चन में मुझे वही प्लस के कैप ही एरिया वेक्टर लेके चलना पड़ेगा।
और अगर मैंने पहले माइनस के कैप अज्यूम कर लिया एज एन एरिया वेक्टर तो पूरे क्वेश्चन में मुझे माइनस के कैप को ही एरिया वेक्टर मान के चलना होगा. वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन बिटवीन द क्वेश्चन, बट इन अ डिफरेंट क्वेश्चन आप बदल सकते हो. अगर तुम्हें लगता है कि प्लस के कैप से कन्फ्यूजन दूर होगा तो प्लस के कैप ले लो, माइनस के कैप से दूर हुआ तो माइनस के कैप ले लो. आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो. लेकिन अगर 3D है, अच्छा एरिया तो 2 डायमेंशनल डायग्राम के लिए ही लिखते हैं, तो 3D से क्या मतलब है मेरा, जितने भी 3 डायमेंशनल डायग्राम है वो बने होते हैं 2D से ही. क्यूब लिया तो स्क्वायर प्लेट से बना है, क्यूबॉइड लिया तो रेक्टेंगुलर प्लेट से बना है, स्फीयर लिया तो किससे बना हुआ है, हॉलो है तो रिंग से बना हुआ है, सॉलिड है तो डिस्क से बना हुआ है. कई सारे डिस्क को जोड़ के ही स्फीयर बनाया जाता है. इसका मतलब ये है कि जितने भी तुम्हारे 3 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं वो बनाए कैसे गए होंगे, 2D से मिलाकर. इसलिए 3D डायग्राम्स में सरफेस एरिया तुम निकाल पाते हो. ठीक है, तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि सरफेस कौन कौन से होते हैं और उनमें डायरेक्शन कैसे लिया जाता है. थोड़ा सा याद रखने टाइप का है तो इसको याद रखना पड़ेगा. हाँ, मैं एक चीज़ नहीं बताया आपको, आप क्लास 12th का जब टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हारे यहीं से शुरुआत है. डाइपोल भी दिया है जो आप पहले पढ़ चुके, कुछ ऊपर नीचे करके दिया होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम भी मेन चैप्टर है तुम्हारे क्लास 12th के बोर्ड्स का. ढंग से पढ़ लेना क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा. ये सरफेस 2 तरह के होते हैं. एक को हम बोलते हैं ओपन सरफेस और दूसरे को हम बोलते हैं क्लोज सरफेस. ओपन सरफेस का मतलब कौन है, ऑल 2 डायमेंशनल सरफेसेस. जैसे स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, डिस्क और भी बहुत सारे जो तुम्हें बोल रहा होगा कि ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है. इनको हम ओपन सरफेस बोलते हैं. क्लोज्ड किसको बोलते हैं, क्लोज सरफेस होता है जितने भी 3 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं. जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन एक्सेट्रा. अब ओपन सरफेस में क्या होता है, एरिया वेक्टर कैन बी टेकन in any normal direction for example k cap or minus k cap for square plate lying in xy plane. बराबर, XY plane. But we have to stick with the assumed direction for whole question. लेकिन 3D में फिक्स्ड है, 3D में आप ऐसे खेल नहीं खेल सकते.
एरिया वेक्टर विल बी टेकन इन नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन। इसको क्या हो जा रहा है, इन नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर 2D है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर 3D है तो कौन सा लेना है, आउटवर्ड। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो उसका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको समझ में आए कि ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है ऐसे, इसका साइड है 5 मीटर, ये एक्स एक्सिस दिया और ये वाई दिया है। मैंने आपसे पूछा फाइंड एरिया वेक्टर। एक दूसरा सवाल मैंने दिया आपको, वही दोनों जो अभी बनाया था मैंने। ये x है, ये y है और ये z है। ये 5 मीटर, ये 37 डिग्री। ये क्या है, स्क्वायर प्लेट, और ये क्या है, स्क्वायर प्लेट। जब दोनों में एरिया वेक्टर की बात की जाएगी तो यहाँ एरिया वेक्टर आप सिंपली लिख पाओगे, एरिया वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू ए कैप। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर का साइड, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। तो क्या आप लिखोगे 5 स्क्वायर। अब एरिया वेक्टर लेना है तो ऐसा वेक्टर लेना होगा जो एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो, तो वो कौन होता है, जेड, मतलब के कैप। लेकिन ये 2D है तो के कैप प्लस में भी हो सकता है और के कैप के कैप। सिंपल तरीके से आप लिख पाए। अब यहां लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इस पॉइंट पे, तो आप देखोगे अगर, तो ये पॉइंट मैंने मान लो O मान लिया, इसको A, ये पॉइंट को B और इस पॉइंट को C। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो OA वाला साइड है ये XZ प्लेन में है, ये जो साइड है ये भी एक्चुअली इसका ही तो पैरेलल साइड है ना ये, तो ये भी XZ प्लेन में है, लेकिन ये Y प्लेन में है। क्या साइड्स प्लेन वाइज अलग अलग हो रहे हैं? जब ऐसे हो जाए, इस तरह का ओरिएंटेशन दिखे, मतलब किसी भी 2 डायमेंशनल डायग्राम को 3D ओरिएंटेशन में दिखाए, किसी भी 2 डायमेंशनल डायग्राम को 3D ओरिएंटेशन में दिखाए, तब आपको क्या करना चाहिए, एक वो साइड लो जो इंडिपेंडेंट प्लेन में हो और दूसरा वो लो या दो अलग अलग प्लेन के साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्या करना होता है, दो अलग अलग प्लेन के साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। खैर और भी बहुत तरीके हैं कि ये प्लेन तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इसको ऐसा फ्लिप कर दो तो माइनस के कैप में जाएगा। फालतूगिरी है, तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है उसमें। एकदम सिंपल तरीका ये है कि आप दो अलग अलग प्लेन को लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। दो अलग प्लेन कौन सा है, एक साइड OA और दूसरा साइड कौन है, OC। तुम्हारी मर्जी, तुम कोई और साइड लेने का मन है तो ले लो, मुझे OA और OC आसान दिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों एंगल के साथ दिए हुए हैं। तो मुझे एरिया वेक्टर लिखना होगा तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा OA वेक्टर क्रॉस OC। अब चूंकि ये 2D डायग्राम है और क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, आप OA क्रॉस OC की जगह OC क्रॉस OA भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस चलता है। तो OA वेक्टर है कितना इसमें, OA ये वाला वेक्टर है, इसके कंपोनेंट लो, एक कंपोनेंट इधर आएगा 5 cos 37, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया,
बोलो। क्या ये आएगा कंपोनेंट? तो इसको लिखोगे तो क्या ये बनेगा 4i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस OC 5j कैप। I क्रॉस j क्या होता है? k। 4 5 या 20। k क्रॉस j क्या होता है? -i 3 5 या 15। दिस इज एरिया वेक्टर। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड अभी भी आप देखिए 25 ही आएगा। 400 प्लस 225 625 करोगे तो 25। तो दोनों एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 25 मीटर स्क्वायर ही है। तो जो आप पढ़ते थे कि एरिया वेक्टर ना बोल के स्केलर बोलूं, तो आप एरिया 25 तो बता पाते, मतलब वो भी सही होता और ये भी सही होता, लेकिन किस तरह का ओरिएंटेशन है वो बताने के लिए आपको एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और डायरेक्शन आप ऐसे निकाल सकते हो। समझा? नोट करो। ये एक डिस्क है, रेडियस r है, नॉर्मल ओरिएंटेशन आप समझ रहे हो। x y और z हो ये। इसका एरिया वेक्टर आपको बताना है। ये वही डिस्क है, ये इसका साइड व्यू है। एरिया वेक्टर आपको बताना है, ओरिएंटेशन वही है। ये भी वही डिस्क है, अलग अलग ओरिएंटेशन में डिस्क को बनाया है मैंने। बताइए। आया यार, 3 छोटे क्वेश्चन दिए, उसमें तुम लोग ऐसे कर रहे हो। पहले का आंसर क्या आ रहा है? डायरेक्शन भी बोलो ना। दूसरे का आंसर इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा कि ये परपेंडिकुलर है। रिंग, ये पहले केस में रिंग ऐसे रखा है, दूसरी केस में रिंग ऐसे रखा है, तीसरी केस में रिंग ऐसे रखा है। रिंग का ही अलग अलग वेरिएशन है, तो ये एरिया वेक्टर आया है, और ये डायरेक्शन आई कैप को आइडेंटिफाई करता है। तो दिस इज पाई आर स्क्वायर आई कैप। मतलब ये रिंग एक्स वाई प्लेन में है, उसी रिंग को हमने वाई जेड प्लेन में देखा है, और यहाँ उसी रिंग को मैं एक्स जेड प्लेन में देख रहा हूँ ऐसे। ये वाली रिंग का जो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ पे बनाया गया है, तो इसमें एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर आएगा।
पाई आर स्क्वायर है, ऊपर भी देख के भी गलत लिख देते हो। आगे चलें, हेडिंग बनाइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्लस नहीं, फ्लक्स। हाँ तुम वही करो, खड़े रहा करो, कोई निकले तो कर दिया करो। चलो हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो इलेक्ट्रिक की बात छोड़ दो, सबसे पहले फ्लक्स क्या चीज़ है वो बताना है अपने को। बहुत जगह पे फ्लक्स आता है, फोटोन फ्लक्स होता है, ग्रेविटेशनल फ्लक्स भी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है, वाटर फ्लक्स भी होता है। फ्लक्स वर्ड का मतलब क्या है? ये बेसिकली बताता है कि पर यूनिट एरिया से वाटर का फ्लो कितना है। फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया वुड बी वाटर फ्लक्स। फ्लो ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पर यूनिट एरिया विल बी ग्रेविटेशनल फ्लक्स। नंबर ऑफ photons passing through per unit area would be photon flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पास कैसे होती है? मतलब अगर ज़्यादा फ्लक्स पास हो, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड पास हो रही है तो ज़्यादा एनर्जी। कौन है बातें किए जा रहा है? ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड पास हो रही, ज़्यादा फ्लक्स, कम पास हुई तो कम फ्लक्स। फ्लक्स बेसिकली एनर्जी को कैरी करने का काम करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो अगर मुझे इन जनरल फ्लक्स को डिफाइन करना है तो मैं बोलूँगा अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज फ्लक्स। क्या बोलूँगा मैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ इज फ्लक्स। अब अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में पास होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो अब इसको ना डिफाइन करने के लिए मैं एक नहीं दो डेफिनेशन लिखता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। ध्यान से देख लेना, लिखने के लिए टाइम मिलेगा। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इलेक्ट्रिक है तो इसको फाई ई से दिखाते हैं। इन जनरल फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। या इसी का दूसरा डेफिनेशन जो आप पढ़ रहे हो, the number of electric field lines passing through unit area is called electric flux। अब अगर इस फ्लक्स की बात की जाए तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने अगर बढ़ा दी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, घटा दी तो घट जाएगा। मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो, यहां समझो, मेरे पास खूब सारी फील्ड हैं।
मैंने इतना बड़ा एक स्क्वायर प्लेट लिया जिसका एरिया है, इतनी सारी फील्ड है, मैं सबको भेजूंगा तो क्या सारी फील्ड इससे निकल पाएंगी क्या? अगर मुझे ये सारी फील्ड निकालनी है तो क्या कर दूं मैं? एरिया बड़ा ले लूं। एरिया बढ़ा दिया तो पहले इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी कि अब बड़े वाले में ज़्यादा निकल रही है? तो ज़्यादा फ्लक्स पहले था कि अब है? ज़्यादा फ्लक्स अब है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एरिया बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ता है? और दूसरा जो पॉइंट अभी आपने वो वीडियो में देखा था वो क्या था कि एरिया बढ़ाने से थीटा बढ़ाने से फ्लक्स घटता है, थीटा घटाने से फ्लक्स बढ़ता है। तो फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि थीटा बढ़ाने को मतलब यूनिट एरिया का मतलब होता है पर स्क्वायर मीटर से कितना पास हो रहे हैं। ज़्यादा करोगे तो स्क्वायर मीटर तो बढ़ गया ना, नॉर्मल यूनिट एरिया से वैल्यूज बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है। यूनिट एरिया का मतलब यहाँ यूनिट मीटर स्क्वायर की बात हो रही है। तो ये 3 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। इन तीनों पॉइंट को अगर आप एक साथ जोड़ोगे, एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 मान ली जाए, तो ये आएगा ई ए कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब यहाँ पे थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है, तो आपको एरिया वेक्टर अच्छे से आएगा तो ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाओगे, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, यूनिट क्या है इसका? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसी क्वांटिटी है ये? डॉट प्रोडक्ट को फॉलो कर रही है तो स्केलर क्वांटिटी होगी ये, मतलब फ्लक्स डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे आते हैं? बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल दे रहा हूं। ये एक डिस्क है, इसका ये रेडियस आर है, ये वाला एंगल 37 डिग्री है, ये ई नॉट है। बताइए इसमें फ्लक्स कितना है? दूसरा सवाल है, ये भी डिस्क है, इसका रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ऐसे है 45 डिग्री पे। बताइए फ्लक्स कितना है? बताइए जरा, पहले केस में फ्लक्स बताइए बिना पेन चलाए, बताओ इसका आंसर बोलो। फ्लक्स क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, तो ई नॉट एरिया कितना है इसका? कॉस थीटा की वैल्यू 37 हो गया। सही है ना? ये गलत है, प्लस माइनस लेके भी गलत होगा। मैग्नीट्यूड लिख रहा हो तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड, कॉस 53 आना चाहिए। अरे यार ऊपर साफ साफ लिखा है, इसको भी पढ़ा करो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है लेकिन तुम्हारा एरिया वेक्टर तो ये आएगा, इसके बीच का थीटा ये रहा 53 डिग्री, तो इसका आंसर होगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 53, मतलब 3/5 ई नॉट पाई आर स्क्वायर। दूसरे का आंसर बोलो, दूसरे का आंसर बोलो। ई नॉट कॉस 45 करेक्ट। कितने लोग बोल रहे हैं सही है?
ये भी गलत है यार, अभी समझाया था मैंने। इसका एरिया वेक्टर ये आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका फ्लक्स आएगा 0। आपको एरिया वेक्टर जब तक नहीं आएगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पीछे मैंने एरिया वेक्टर्स लिखवाए थे इनके। पहले एरिया वेक्टर निकालना है और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे एक और सवाल दे रहा हूँ, इसको आप सही कर दोगे मुझे उम्मीद है। क्यूब है साइड ए का और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E नॉट आई कैप। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यू। लिखिए, मैं 1 मिनट में आ गया, तुम लोग लिखते रहना, चलाना मत। वेरी गुड, सही है। यहाँ से ये जो 0 आया ना, इसको देख के लोग मिसकंसेप्शन बनाते हैं एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी क्लोज सरफेस से 0 होता है। ऐसा नहीं है। ये ध्यान से देखो, इसमें कितने सरफेस है, ये 1 2 3 और 4। पीछे भी, इसके पीछे एक 5 होगा, इसके पीछे एक 6 होगा। 6 सरफेस होता है ना क्यूब। क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 ना। क्यूब ऐसा कुछ लाया है कोई? चलो ये रखा है, इसको क्यूबॉइड है, इसको क्यूब ही मानो, खाली साइड का ही फर्क होता है। कितने सरफेस है, 1 2 3 4 5 6। ये दोनों x में है, ये दोनों y में है। इसी का रिमोट है, कम तो किया, कोई तो लाया होगा ना। कौन लिया रिमोट? अपने आप गायब हो गया क्या? ना ना ना। तो ये है। अब अगर मैं सरफेस 1 देखूं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा अंदर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ आएगा। क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर बाहर, मतलब माइनस आई कैप। तो फ्लक्स 1 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा E नॉट ए स्क्वायर, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में, इसमें डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, E नॉट ए स्क्वायर कॉस ऑफ 180। 180 क्यों आया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे बाहर है, तो माइनस E नॉट ए स्क्वायर। फ्लक्स 2 देखना है, मतलब नीचे वाला। तो नीचे वाले सरफेस पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये cos 90 मतलब 0 हो जाएगा। और अगर मैं E4 देखूं, ये ऊपर वाला सरफेस, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, तो यही E4 के लिए भी होगा, 5-4 के लिए भी। और ये वाले सरफेस को छोड़ दो तो जो 2 सरफेस बचे हैं, ये वाला सरफेस, ये पीछे वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, तो क्या 5-5 और 5-6 जो नहीं दिख रहे हैं वो भी यही होंगे। अब ये वाला सरफेस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर भी ऐसे है। कितना एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में? 0 डिग्री। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा।
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाई 3 कितना आ जाएगा, ई नॉट ए स्क्वायर कॉस 0 मतलब ई नॉट ए स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबको आपको जोड़ देना चाहिए, फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 5 और 6, तो ये 0 बन जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा बोला गलत है, मैंने बोला तो सही है। अब यहाँ एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों के अंदर, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस विल ऑलवेज बी 0। नहीं, ये तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये सबको आ गया था, आगे बढ़ू, हटाऊं ये पेज को, अगर ये सवाल ऐसा होता कि क्यूब है, साइड ए है, ये हमारा ओरिजिन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट एक्स आई कैप, और ये सेपरेशन डी दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू क्यूब पूछा हुआ है, वही सवाल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब बताइए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब 0 आया सर? नहीं होगा 0, नहीं होगा। इसमें भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, तो आई कैप के अलावा जो भी डायरेक्शन होगी उन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो आई कैप वाले में अगर लिखना है तो फाई 1 क्या लिखा जाएगा, एरिया वेक्टर मतलब थीटा इनके बीच में 180 डिग्री है, और इसका एरिया आएगा ए स्क्वायर। इस पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट एक्स आई कैप, मतलब एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो जब पहले सरफेस पे पहुंचेगा, अगर ये डिस्टेंस आपको d दिया हुआ है, एक्सिस एक्स, अगर ये डिस्टेंस d दिया है, तो पहले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट डी। x की वैल्यू d है फॉर सरफेस 1, कितना दूर है ये बताना था, माइनस ई नॉट डी ए स्क्वायर आ गया, फाई 2 फाई 4 फाई 5 और 6, ये सब 90 डिग्री बनाएंगे क्योंकि x में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। फाई 3 की वैल्यू अगर लिखोगे तो इस पॉइंट पे अपना एरिया वेक्टर इधर आया है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी, ई नॉट ए प्लस डी, एक्स की वैल्यू ए प्लस डी है, तो ई नॉट ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर कॉस 0, मतलब यह आएगा फाई 3 इज इक्वल टू ई नॉट ए क्यू प्लस ई नॉट डी ए स्क्वायर, करेक्ट ना। जब इसको सॉल्व करोगे, फाइनेट लिखोगे, तो इनको जोड़ो तो माइनस ई नॉट डी ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए क्यूब प्लस ई नॉट डी ए स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। नेट फ्लक्स कितना आया, ई नॉट ए क्यूब, सॉरी, समझ आया।
कोई दिक्कत किसी को? तो है दोनों क्यू भी, एक से फ्लक्स 0 पास हो रहा है और एक से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ई नॉट ए क्यूब, नॉन जीरो फ्लक्स है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि कब जीरो होगा? आपको शॉर्टकट मिल जाएगी, हम तो यार कैसे कर पाएंगे? तो आप बोलिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी जीरो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। लिख लेना, भी बोल दूंगा मैं पॉइंट। सवाल ये है, एक स्क्वायर प्लेट, चलो वही चीज जिसकी साइड है 5 मीटर, ये x है और ये y है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर प्लेट कितना है बताइए? चलिए, दो सवाल आपकी स्क्रीन पे हैं, जल्दी जल्दी करिए। देखो पहला वाला, इसका एरिया वेक्टर कितना आया 25, मैं प्लस के कैप ले लेता हूँ। तो फ्लक्स क्या होता है, अब दोनों वेक्टर में दिए हुए तो ई डॉट ए कर सकते हैं ना। तो जब मैं फ्लक्स के लिए ई डॉट ए करूँगा तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 25 के कैप। आई डॉट के 0 होता है, जे डॉट के भी 0 होता है, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 आ गई। दूसरे केस में एरिया वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट कर दो। दूसरे वाले में पहले एरिया वेक्टर लिखेंगे। एरिया वेक्टर आएगा 10 cos 53 आई कैप प्लस 10 sin 53 के कैप क्रॉस 10 जे कैप। तो 10 cos 53 मतलब 10 इंटू 3/5 6 10 जा 60 के कैप और 10 10 जा 100, नहीं ये 3 बन जाएगा ना, 6 8 बनेगा, ये 8 10 जा 80 के क्रॉस जे आई कैप। ये एरिया वेक्टर आ गया। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 के कैप डॉट 60 के कैप माइनस 80 आई कैप। तो अब i को i में मल्टीप्लाई करते हैं, j को j में और k को k में। i को i में मल्टीप्लाई किया माइनस 160, j इसमें है नहीं तो j वाला 0 हो गया, k को k में किया तो माइनस 300। टोटल फ्लक्स आया माइनस 460 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या है, यहाँ एक मैंने डिस्क लिया है, इस डिस्क के एक्सिस पर ये यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया मैंने Q। क्या रखा पॉइंट चार्ज मैंने Q। अच्छा, इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा,
किसी पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं क्या वो ऐसे निकलती हैं? हाँ बोलो। इस तरह से हर डायरेक्शन में निकल रही होती है। और डिस्क अपना कहाँ है? क्या यही अपना डिस्क है? तो क्या ये सारी जो डायरेक्शन आप देख रहे हो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई? हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि बदल रहा है? हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे बदल रहा है। तो तुम्हें जब इसको कैलकुलेट करना होगा तो इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। अब इंटीग्रेट करने के लिए डिस्क में क्या करते हैं? एक्स पे जाते हैं। एक्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि एक्स हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। ये टोटल रेडियस आर है। स्मॉल आर पर जाओ, डी आर थिकनेस की क्या ले लिया मैंने? एक रिंग। इस रिंग से कितना फ्लक्स पास होगा इसके लिए आपको क्या करना है? इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी यहां मान लो कहीं ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हाँ या ना? और ये बहुत छोटा है ना, तो ये छोटा सा जो पार्ट यहाँ मुझे दिख रहा है इसको मैं बोल रहा हूँ बहुत छोटा सरफेस मैंने जो लिया, इस छोटे सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या मेरा इधर आएगा? डी ए। ई और डी ए के बीच में कितना एंगल है? और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर है। कैसे समझ में आया मुझे बराबर है? स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा। तो छोटा सा जो फ्लक्स लिखा जाएगा डी फाई वो क्या लिखा जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस ई की वैल्यू कितनी होगी? ई क्या होगा? के क्यू एक्स बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये कहाँ से मिला? ये रिंग लिया ना तुमने, रिंग के एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही चीज है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? मुझे है दिक्कत। अरे ये नहीं होगा भाई, मैं वही तो समझाने जा रहा हूँ। तुम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाते क्या? कि खाली हाँ जो बोल दिया हाँ यही होगा, हाँ हाँ यही होगा। ये डिस्टेंस कितना? अरे के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 तब होता है जब इस पर चार्ज होता है, एलिमेंट पर। रिंग पर चार्ज हुआ तो इस पॉइंट पर। अब ये तो पॉइंट चार्ज है ना भाई, पॉइंट चार्ज क्या देगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ना। जबरदस्ती सब हाँ हाँ बोल देते हो यार। के को मैं के नहीं लिखता, 1/4πε0 लिखता हूँ। क्यू बाई √r² प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। इस छोटे से पार्ट का एरिया कितना? 2πr/dr। और cos थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? इस डायग्राम से cos थीटा क्या आया? ठीक, तो 2π ने इसको कैंसिल किया तो डी फाई आएगा q/2ε0 x। ठीक है, और ये क्या आएगा? r/dr। ये जब हटाओगे ना तो ये रूट हट जाएगा। 2 1/2 1 + 1/2 3/2। ठीक है, छोटा सा जो फ्लक्स है इसी को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके r तक। अब इसका इंटीग्रेशन अपन सीख चुके हैं, डिस्क में यही तो इंटीग्रेट किए थे ना। कैसे करते हैं इंटीग्रेट? लेट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। डिफ्रेंशिएट किया तो r dr की वैल्यू ये आ गई। अब मैं इस पे लोअर लिमिट रखूंगा तो r की वैल्यू 0 से चालू हो रही है तो t की वैल्यू x हो जाएगी। r 0 होगा, लोअर लिमिट के लिए r जो वेरिएबल है वही लेते हैं। रेफर करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, यही चीज किया था। और अपर लिमिट लिखेंगे तो व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, देखो ये लिमिट, तो जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हुआ तो ये बन जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू टी। देयरफॉर ये पूरा बनेगा फाई इज इक्वल टू क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, आर डी आर की जगह टी डी टी, और यह आएगा टी स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 लिमिट एक्स से रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1/t स्क्वायर बनता है -1/t। यहाँ से टोटल जो फ्लक्स आया अपने पास, लिमिट है x से रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टोटल जो फ्लक्स आया बेटा वो q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स 1/x माइनस 1/रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या अंदर भेज दो तो q बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझा? दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ डिस्क ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। छापिए। इसके बाद तुम्हारा एक और लेक्चर है, किसका? अच्छा, बस 1 करोड़ में 1 BHK मिल रहा है, ऐसा दिखाते हैं ये लोग, लगता है 1 करोड़ रुपए कुछ है ही नहीं। बैंड्रा लाइफस्टाइल में 1 BHK मात्र 99 लाख रुपए। मात्र तो ऐसे लिखते हैं जैसे लगता है कि बस फ्री में ही है, 10 रुपए दो ले जाओ।